والدین کے حقوق میں سے مزید اگر ہم آگے کو بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور بتایا اور کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف نہیں کرتے ہیں، اس کے بعد جو سب سے بڑا شرک ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر ہم اگر ان کے نافرمان ہیں تو ہمارا نہ دنیا میں کوئی بنے گا اور نہ آخرت میں کوئی بنے گا۔ اس وجہ سے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ والدین جب آپ کو کوئی حکم دے، وہ آپ کو بات کرے، تو آپ سارے کام چھوڑ کر ان کی بات کو سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نماز کی مصلی پر کھڑا ہوں میرے والدہ مجھے آواز دے تو میں کیا کروں گا؟ میں نماز کو چھوڑ کر ان کے حکم کو سنوں گا۔ مطلب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ والدین کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھو والدین لوگ اس چیز کو اگر ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو جو انسان کا وجود اس دنیا میں آیا وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ والدین کی وجہ سے ہے۔ اور اگر والدین کی وجہ سے ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کا گوشت اور آپ کا بلڈ خون جو ہے یہ آپ کی ماں کا حصہ ہے، اور جو ہڈیاں ہیں یہ آپ کے باپ کا حصہ ہے۔ اور اگر آپ اپنے والدین کے حقوق پورے نہیں کر سکتے تو پھر یہ گوشت خون اور ہڈیاں پھر ان کو واپس کر دو، پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر ان کا گوشت ہڈیاں اور خون کو استعمال کریں۔ تو اس سے ہمیں یہ بار بار یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ہم بات ان کی مان رہے ہیں، عزت ہمیں بھی نہ رہی، حکم ہم ان کا مان رہے ہیں، مقام ہمیں بھی نہ رہا ہے، معاشرے کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ جب آپ لوگوں سے والدین راضی ہو جائیں گے تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی بہار اس دنیا میں بھی ہے اور آپ کی بہار آخرت میں بھی۔ اس لیے والدین نے جس طرح آپ کا خیال کیا ہے بڑھاپے میں بالکل اسی طرح خیال کرو، جس طرح وہ آپ کو بچپن کے اندر آپ بولنے کے بغیر آپ کی ضرورت کو پوری کرتے تھے، بڑھاپے میں اسی طرح ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ لڑک پر انہوں نے آپ کا برداشت کیا ہے، آپ کا انہوں نے بچپن برداشت کیا ہے، اور اس سے پہلے آپ لوگوں کی جتنی زندگی پیدا ہونے سے لے کر 20-25 سال تک آپ لوگ ان کا دین دار جو انہوں نے آپ کو مہیا کیا آپ کو کر تو نہیں سکتے ہیں، لیکن آخرت میں جب ان کی ایج اتنی ہو گئی ہے آپ ان کا پورا خیال کرو جس طرح وہ آپ کا خیال کرتے تھے، پھر وہ والدین کے حقوق پورے آپ ادا کریں گے۔ اگر آپ سے والدین ویسے ناراض ہیں، آپ ان کی بات مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا یہ کرنا ہے بیٹا کرے گا، بیٹی یہ کرنا ہے بیٹی کرے گا، باپ کچھ کہہ رہا ہے وہ آپ کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ ان سے کئی ساتھ بحث کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا ویسا ہوگا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی اہمیت کو جانتے نہیں۔ جب آپ کا اللہ اور آپ کا رسول یہ ساری اہمیت آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، اس کو سمجھو، سمجھنے کے بعد عمل کرو، یہ ہے والدین کے حقوق۔ اس کے علاوہ آپ لوگ آگے اولاد کے حقوق ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں والدین کو بھی، اور اولاد کا سب سے بڑا حقوق آج اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کو بولنے کا سلیقہ نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے پہلی درسگاہ ہماری ماں کی، آپ کی اگر حرکتیں ٹھیک نہیں آپ کو پتہ ہے آپ کی پہلی درسگاہ ماں، آپ کو ابھی تک چیزوں کی سمجھ نہیں آتی آپ کو پتہ آپ کی پہلی درسگاہ ماں، آپ کو معاشرے کے ساتھ پورا اٹھن بیٹھن ابھی تک نہیں آتا آپ کو پتہ آپ کی پہلی درسگاہ ماں۔ جب آپ کی پہلی درسگاہ آپ کو بہت مضبوط کر دے گی پھر اگلی درسگاہ آپ کی اسکول آئے گی، پھر اگلی درسگاہ آپ کا کالج آئے گا، پھر اگلی درسگاہ تھی جو آپ کی یونیورسٹی بنے، پھر آگے ادارے بنے۔ تو آپ کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ بڑی مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی تربیت بڑی زبردست ہے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے آپ کے معاملات آٹومیٹکلی زبردست ہوتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ والا ہے کہ ہمارے کچھ اولاد کے جو حقوق ہیں وہ پورے ادا نہیں ہو پاتے ہیں، اور پھر والدین بھی ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ جی ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی ہے۔ تو آپ اپنی اولاد کو کتنا وقت دے رہے ہیں یہ ان کا حق ہے،
नहीं मार सकते उन्हें कि आप उनकी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद के साथ बेहतरीन आपका रवैया होना चाहिए। जितने वक्त की उन्हें जरूरत है उतना वक्त दो, ताकि दूसरे आपके बारे में बात न करे, वो उंगली न उठा सके। सूरत बनी इसराइल के अंदर ये औलाद के हकूक भी है, और उस हकूक में ये भी है जो मफहूम दिया गया है, और वो 31वीं आयत वालिदैन में 2324 थी, और औलाद की 31वीं वो आयत है जिसमें ये लिखा गया है, और ना मार डालो अपनी औलाद को, मुफलसी के खौफ से हम रोजी देते हैं तुमको, और तुमको बेशक उनको मारना बड़ी खतरा है। आप लोग अपनी औलाद को इस वजह से मार दे कि हम उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते, जबकि जरूरत को पूरी करने वाली तो अल्लाह ताला की जात है। आपने तो कोशिश कर दी ना, आप अपनी पूरी कोशिश करें ना, और कोशिश करने के बाद बाकी मामला अल्लाह ताला कहा जाता है, कोई भी बंदा भूख से तो नहीं मरता। रिज़्क़ का तो वादा अल्लाह ने किया हुआ है, जब रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने किया, उसने आपको देना ही देना है, चाहे वो एक कीड़ा पत्थर के अंदर ही क्यों नहीं रह रहा, अल्लाह ताला उसको भी रिज़्क़ देता है। तो आप तो फिर उसकी अशरफुल मखलूक़ात है जिसको अल्लाह ताला ने देना ही देना। फिर उसके बाद अगला अमल है, रिज़्क़ की जिम्मेदारी तो खत्म होगी आपकी, क्योंकि वो अल्लाह की जिम्मेदारी है। आपकी जरूरियात थी, आपने अपने बच्चों का ख्याल रखना किया, उनका लहजा किस तरह का बनाया, उनका चाल चलन किस तरह का किया, उनकी तरबियत में आपने क्या वो तमाम तालीमात लेके आए जिससे वो वाकई दीन पर और दुनिया को सही तरीके से चला सके। क्या आपने इन चीजों का इत्तेमाम किया? अगर आपने बेहतरीन इत्तेमाम किया हुआ है अपनी औलाद की जरूरियात का, उनकी तालीम और तरबियत का, उनको पालने पोसने का बेहतरीन निज़ाम है, फिर आप फिर उसके बाद औलाद की जिम्मेदारी है, तो उसके बाद तो इससे पहले ज़ाहिर है एक औलाद को इस लेवल का करो, उसको अगर अच्छे पैसे हैं तो उसको अच्छा बिजनेस रन करके दो, और अगर आपके पास अच्छे पैसे नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टीज नहीं है, बेहतरीन एजुकेशन दो, ताकि वो बेहतरीन तालीम लेने के बाद अपना बेहतरीन रोजगार, बेहतरीन जॉब ढूंढ सके, वो काम कर सके। जितनी आप में एबिलिटी वालिदैन पैदा कर सकते हैं, उतनी उस्ताद आपके अंदर एबिलिटी पैदा नहीं कर सकता। बहुत सारी मिसालें हैं दुनिया के अंदर, अगर आप देखते हैं, वो आइंस्टाइन को देख लो, वो एडिसन, थॉमस एडिसन को देख लो। थॉमस एडिसन की भी यही सोच, और जिसने सबसे पहले बल्ब को इजाद किया, लोगों को रोशन करना उसने सिखा दिया। वो कहता है कि वादा उसकी बताती है कि मैं अपने बच्चे से मतलब इस तरह खौफजदा और डरती थी कि मैं अकेला उसे छोड़कर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती थी? कहती एक दफा मैं गई तो घर में मुर्गियां रखी हुई थी, तो मुर्गियों के जो कंडे थे उसके ऊपर थॉमस एडिसन बैठा हुआ। तो मैंने कहते उससे पूछा भी बेटा ये क्या कर रहा है? कहता मैं चेक कर रहा था कि अगर इसके ऊपर मुर्गी बैठती है तो इसमें चूजे निकलते हैं, तो मैं बैठूंगा तो फिर क्या निकलेगा। वो लोग इस तरह के मतलब खुद जेब लोग थे, पता ही नहीं था, और स्कूल ने उनको निकाल कर बाहर फेंका था कि वी कैन नॉट टीच देम, हम इन बच्चों को वी कैन नॉट टीच लाइक दैट स्टूडेंट, हम ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, जिनको बात कोई करो आगे से बात कोई नहीं, निकाल दिया। फिर उनकी वालदा ने उन पर वक्त लगाया, उनकी ऐसी तालीम और तरबियत, उनकी गिरीद के वो साइंटिस्ट लोग बने। आइंस्टाइन का देख लो, उसका भी यही हाल है। दुनिया में बहुत सारे साइंसदान ऐसे बने हैं जो उनकी माँ ने उनको साइंसदान बनाया, उस्ताद ने बनाया। इसका मतलब है कि ये वालदा की कितनी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी औलाद को कहां से उठाकर कहां तक ले जा सकती है। ये वालदा के अंदर गुण होते हैं, और ये गुण तरबियत के अंदर बच्चों में नजर आते हैं कि एक वालदा ने अपने बच्चे को कितना वक्त दिया हुआ है, उसको उसका तमाम चाल चलन, उसका बोल चाल, ईच एंड एवरीथिंग अगर सिखाई हुई है, तो फिर आप लोग अंदाजा नहीं कर सकते औलाद के हुकूक पूरे ना होते।
सर सैयद अहमद खान के बारे में अगर आप लोग बायोग्राफी पढ़े तो आपको औलाद के हकूक के बारे में पता चलेगा। एक बड़ा घराना था, अमीर तो थे, तो नौकर चाकर उस दौर के अंदर थे, तो उनके पास अभी पाकिस्तान बना नहीं था, उससे पहले सोच ही नहीं थी जब इन्होंने ये मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज और अदारे बनाने शुरू कर दिए थे और मुसलमानों के लिए दे रहे थे। तो कहते हैं छोटे थे, एक मुलाजिम को कहा कि मुझे पानी ला कर दे, मुलाजिम की बिजी हो गया, उसे पता नहीं चला कि किसी और काम में मसरूफ हो गया। दोबारा बुलाया, मैंने तुझे कितनी देर तक कहा हुआ है, तुमने पानी लगाया, उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। अब जब थप्पड़ मारा वालदा देख रही थी कि ये इसने थप्पड़ से क्यों दोबारा बुलाया, बुलाने के बाद पूछे इसे क्यों थप्पड़ मारा, उसने कहा मैंने इसे पानी के लिए कहा था, ये मतलब मारना होगा, इसने मेरी बात नहीं सुनी। तो वालदा कहते हैं हमने इनको कभी नौकर नहीं समझा है, तो तू कैसे नौकर समझ सकते हैं? इस वजह से आज से मैं तुमसे नाराज हूं और तुझे मैं घर में दाखिल नहीं करूंगी। और कई दिन तक वो अपनी खाला के घर के अंदर रहता है और खाला के घर में रहने के बाद जब उसको ये चीज का रियलाइज होता है, वो अपनी वालदा से आकर माफी मांगता है, आइंदा ऐसा कभी किसी नौकर के साथ अपना रवैया इख्तियार नहीं करूंगा, और उसके साथ सॉरी करता है। सॉरी करने के बाद फिर वो लोग सर सैयद अहमद खान पैदा होते हैं, जब उसके वालिदैन कैटेगरी करते हैं कि गलती बात किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, फिर वो लोग आगे अपनी नस्लों को जाकर कुछ दे पाते हैं। तो ये इसीलिए है अपना सबसे ज्यादा जो वक्त है वो अपनी औलाद को देना चाहिए। आपकी औलाद ही आपका सहारा बनता है। आप अपने दोस्तों को, एक वालिद अपने दोस्तों को वक्त मैक्सिमम देता है, सारा दिन वो बाहर जॉब करता है, मेरे शाम को घर आए हैं, मेरे पास वक्त नहीं होता है, तो औलाद के हम लोग सिर्फ रोटी खिलाना तो देंगे, कपड़ा पहनाना तो देंगे, उनके साथ बात करना भी तो उनका हक है, उनके साथ वक्त गुजारना भी तो हक है, उनकी आउटिंग करवाना भी तो उनका हक है। तो उनकी तमाम जरूरत को देखे मेरे बच्चे को कौन कौन से मसाइल है वो एक वालिद और वालिदा दूर कर सकते हैं, वो उस्ताद नहीं दूर कर सकता, वो वालिदा और वालिदा की ही जिम्मेदारी। जब वो तमाम मामला सुधरते हैं, बच्चे फिर बताते हैं मेरे वालिद ने मुझ पर क्या इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरी वालिदा ने मुझ पर क्या इन्वेस्ट किया हुआ है। जो इन्वेस्टमेंट आपने अपने बच्चे पर की होती है वही उनको बाहर निकलती है। अब देखो ना, मैं एक बच्चे को 100 रुपया देता हूँ तो वो 100 रुपए की चीज लेके आएगा ना। अगर मैं उसे देता ही कुछ नहीं हूँ, पॉकेट ही खाली है, वो आगे लेके क्या जाएगा, देगा क्या, वो कुछ भी नहीं दे पाएगा। आपने अपने बच्चे को जो दिया होगा कल को उसी की उम्मीद रखिएगा, उसने वही देगा। आपने अगर उसे अच्छी बात करना सिखाया हो तो उदाहरण अच्छी बात करना ही आपने सीखा है और आपने अच्छी बात ही करेगा। अगर आपने उसको गुफ्तगू का अंदाज बताया हुआ, बड़ों का अदब बताया हुआ, तो वो आपका भी अदब करेगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमारे पास तो वक्त नहीं, हम क्या करें, हम तो औलाद को जो ना वो मेहनत करके बाद से कमाकर ला ही सकते हैं, ला सकते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी, आपका हक है। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा हक है, क्या वक्त दे रहे हैं, खराब तो नहीं हो रहा, आपको पैसा दे जा रहे हैं, वक्त ना दिया तो किसी और ने उसको वक्त दे दिया, कोई और खराब बंदा उसको मिल गया तो वो तो खराब कर देगा उसको। इस वजह से ये सारे मामला आपने, आपके वालिदैन ने और हमारे मास्टर ने समझने हैं कि हमारी औलाद के कौन से हकूक हैं, और अगर आपकी बेहतरीन औलाद है तो समझ लीजिएगा आपने अपनी जिंदगी में सारा कुछ हासिल कर लिया। एक वालिद को आप देखिए, एक वालिद अपनी खुशी से, अपनी कामयाबी से उतना खुश नहीं होता है जितना वो अपनी औलाद की कामयाबी से खुश होता है। समझ लें कि अगर एक वालिद वो अपनी कामयाबी से 50% खुश होता है, या मैं कहता हूँ 100% खुश होता है कि मैंने बड़ा काम किया, लेकिन वो अपनी औलाद से 200% खुश होता है, डबल खुशी मिलती है उसे, डबल खुशी मिलती है उसे कि यार मेरी औलाद जो है वो मुझसे आगे निकल रही है, मेरी औलाद उसकी औलाद के लिए कोई बात कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, इज्जत से नवाज रहा है। असल में ये बात शादी तो सिर्फ ये कह देना कि हम तो अपनी बच्चों के लिए भी मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत के साथ अपने बच्चों पर पूरी तवज्जो दें, टाइम दें, उनका ख्याल रखें, किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं, उनका बात करने का तरीका किस तरह है, घर में उनका रहन सहन किस तरह है, बहन भाइयों के साथ किस तरह रहते हैं। क्या वो ये तो नहीं समझता कि मुझे ज्यादा प्यार कर रहा है, इसको कम कर रहा है, मुझे दूसरे को ज्यादा पैसे दे रहे हैं, मुझे कम
औलाद के अंदर इक्वलिटी, साथ साथ बैठा कर मसला हो तो उनको वक्त होते जाकर सीखते। उम्मीद है आप समझ रहे होगी और इसके ऊपर अमल करने